This lecture is about the transport sector in India. See, transport is the backbone of any economy, not only of Indian economy, but of any economy per se. The transport sector. In the morning, I had sent you a message in which I had clearly mentioned that there are 5 verticals of transport sector. All of us have several times read means of transport. So first one is road, then rail, then water, then air, and then pipelines. So these are the 5 means of transport. And in water, there are 2, inland as well as marine. इसको सी या ओशन जो भी आप बोलेंगे, और इनलैंड जो है दैट इज फॉर रिवर्स और कैनाल्स. ये जो है वो सी के लिए है और या ओशन के लिए. 3 दिन है हमारे पास इसको पढ़ने के लिए. ठीक है. तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है दैट इज रोड. हमारे यहाँ रोड्स कितने तरीके की हैं, नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज में क्या डिफरेंस बेसिकली हम देख पाते हैं, एक्सप्रेसवेज का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा. एंड इसको हम विद इन ड्यू टाइम फ्रेमवर्क हम खत्म कर देंगे. 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद फिर हमें मिनरल्स और इंडस्ट्रीज भी पढ़ना है. सो स्टार्ट राइटिंग. ट्रांसपोर्ट इज अ सिस्टम. Transport is a system in which passengers and goods are carried from, in which passengers and goods are carried from one place to another, are carried from one place to another. Transport makes the backbone of country's economy. Transport makes the backbone of country's economy, and it is the base of supply chain resilience, and it is the base of supply chain resilience. It is the base of supply chain resilience. What is supply chain resilience? Whenever we say supply chain resilience should be there, SCRI initiative, SCR initiative, supply chain resilience initiative. It is a major initiative from India and Vietnam to counter the hegemony of China. So what is the basic meaning of supply chain resilience? बोलो जी बोलो. Supply chain resilience means capacity of supply chain to absorb shocks, unforeseen dangers. कोई कैलेमिटी हो गई, वॉर हो गई, कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ भी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, तो वो कैसे हो कि अगर ऐसे कोई एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हो गई, if there are any sort of adverse circumstance, the manufacturing should not hinder, the supply should not hinder, and ultimately the general price level in the market, it should not rise beyond an admissible limit. ठीक है. वो जो इन्फ्लेशन का जो रेट माना गया है 3% 4%, उससे ज्यादा वो ना हो. दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस. लिखिए, India has a vast stretch. India has a vast stretch in all directions. 4 बजे का मतलब 4 बजे का होता है. इंडिया, मेरे में वो 4:05 जो लिखा आता है उसे 5 नजरअंदाज कर दिया करो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है. वो मेरी कॉल है कि मैं आगे कितना बढ़ा दूं, मैं 10 मिनट भी आगे खींच दूंगा, पर जब भी 5:05 हो उसका मतलब 5 होता है.
वो 5 को हटा दो और उसके हिसाब से 3:50 पर आ जाओ, 4 बजे की क्लास है तो। इंडिया हैज अ वास्ट स्ट्रेच इन ऑल डायरेक्शंस, सब जानते हैं। इट्स नॉर्थ साउथ स्ट्रेच इज 3214 kilometers, 3214 kilometers, while east 3214 kilometers, 3214 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ स्ट्रेच है। एंड नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेच इज 2900, ये तो 3214 है, ठीक है। और ये बाकी जो जो ईस्ट वेस्ट वाला है वो है 2933 kilometers. In addition, India has great diversity in economic, social, cultural and ethnic structure. India has great diversity in economic, social, cultural and ethnic structure. Hence, a well-knit transport system, well-knit, K-N-I-T, well-knit transport system is essential to bring about, well-knit transport system is essential to bring about unity in diversity, to bring about unity in diversity. अनेकता में एकता लाने के लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और हम जानते हैं पहले का जो वक्त था जब लोग गांव देहात में रहा करते थे, ज्यादा बहुत बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं थी, लोग घरों में रहा करते थे, ज्यादा से ज्यादा गाँव में रहा करते थे। तो उस समय का क्या था कि हमें बाहर के लोगों से वास्ता नहीं पड़ता था, अलग अलग कल्चर्स के लोगों से। जब देश में रेलवेज इंट्रोड्यूस हुआ तब हमारे यहाँ का जो जाति व्यवस्था थी उसके ऊपर सीधा सीधी चोट पहुंची। कैसे? अब ट्रेन में तो वही बर्थ है, और जो पहले ब्राह्मण शूद्र की परछाई से परहेज कर रहे थे अब उन्हें उन्हीं के बगल में बैठना पड़ रहा है। तो आप कितनी बार स्नान करोगे? पहले तो ये था कि हम जानते हैं कि जो चांडाल्स होते थे जिनका काम होता था शवदाह का, जो शमशान घाट में लकड़ियां सेट करना और चिताओं को जलाने का जिनका काम होता था, उनके पास लकड़ी के क्लैपर्स होते थे। एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 12 की, उसमें लकड़ी की क्लैपर्स हुआ करते थे, वो बजाते हुए गाया करते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि वो पता चल जाता था कि एक शमशान घाट में काम करने वाला आ रहा है, तो लोग अपने आप किनारे हट जाया करते थे, उनकी परछाई भी ना पड़े, परछाई भी पड़ गई तो स्नान करना पड़ेगा, इतने गंदे हैं। रेलवेज आ गया देश, बैठो वही सेम बर्थ है, वही कोच है। पहले स्टीम इंजन होते थे, उसमें तो बहुत ज्यादा कोच भी नहीं हुआ करते थे कि आप ये वाला कोच छोड़ के दूसरे में जाके बैठ गए, ठीक है। तो जब इस तरीके से एक ट्रांसपोर्ट की जब व्यवस्था बनती है, भाई आपके घर का सामान जो है, आप पूजा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी भी जात के हों, आप ऊंचे सवर्ण हो, और जो शूद्र के घर में जो दलित है, एससी है, एसटी है, उसके घर में जो पूजा का सामान जो इस्तेमाल हो रहा है वो आ तो एक ही ट्रक में लग के रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अपने लिए करवा रहे हैं और एक उसके लिए। तो जब कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है तो आप किस बात का अंतर रह गया? सारे अंतर तो ट्रांसपोर्ट ने खत्म कर दिए ना। तो ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल टू ब्रिंग इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर अकाउंट्स फॉर मोर देन 6%, transport sector accounts for more than 6%. Whenever I say more than 6%, I mean 6 point something. ऐसा नहीं है more than 6 का मतलब 7 हो गया, वो 7 होता तो मैं 7 बोल देता, वो 7 से कम है पर 6 से ज्यादा है, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं more than 6% बोल देता हूँ। 6.3 है वैसे, 6 more than 6% of India's GDP. श्री जॉन मथाई, कहाँ गया? देखिए इसमें मैं उनकी तस्वीर लेकर आया हूं क्योंकि आपने जॉन मथाई का आपने नाम सुना होगा।
लक्ष्मीकांत में भी आपने जॉन मथाई एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, इनका नाम रेलवेज मिनिस्टर के तौर पर जॉन मथाई का नाम पड़ा है। देखिए, श्री जॉन मथाई was the first transport minister of India. Was the first transport minister of India, and he was succeeded by Shri Narasimha Gopal Swamy Iyengar, N. Gopal Swamy Iyengar. Shri Narasimha Gopal Swamy Iyengar. सबसे पहले जॉन मथाई थे, गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुई हैं उसमें गोपाल स्वामी अयंगर का बहुत भारी रोल रहा है। देखिए, देयर आर 5 डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, देयर आर 5 डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज earmarked for different sectors of transport, earmarked for different sectors of transport. They are first Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Road Transport and Highways, इसको मॉर्थ बोलते हैं, MORTH, मॉर्थ। ठीक है, तो आगे जब भी मैं मॉर्थ बोलूंगा तो आप अपने आप समझ जाएं कि मैं सड़क मंत्रालय की बात कर रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, पत्तन, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अचानक से किसी से बोल दो तो एकदम समझ भी नहीं पाएगा कि ट्रांसपोर्ट में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय की बात कहां से आ गई। देखिए, फर्स्ट वर्टिकल डिस्कस करेंगे, सरफेस ट्रांसपोर्ट। 5 वर्टिकल्स हमने लिखनी है, इसका फर्स्ट वर्टिकल है सरफेस ट्रांसपोर्ट, जिसे रोड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भूतल परिवहन, भूतल, जमीन पर चलने वाला। India has one of the largest road networks in the world. India has one of the largest road networks in the world. दिवाली की छुट्टियों में जो जो अपने अपने घर, गांव, शहर वापस लौटेंगे, वो थोड़ा कुछ ये बीच में भी लेकर के चले जाना, भाई थोड़ा पढ़ लेना कितने पटाखे छोड़ाएंगे, है ना। एक लिमिट होती है पटाखा बजाने की भी, तो थोड़ा पढ़ भी लेना पटाखों के साथ। India has one of the largest road networks in the world. It has a network of 62,15,797 kilometers of roads. 62 lakh 15,797 kilometers of roads. This is next only to the US. This is next only to the US. The road density of India is way higher than the US. रोड डेंसिटी का मतलब होता है रोड्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, रोड डेंसिटी का मतलब होता है रोड्स पर स्क्वायर किलोमीटर। कितने किलोमीटर आपने रोड बना दी है पर स्क्वायर किलोमीटर में, वो होती है डेंसिटी। रोड्स इन इंडिया कैरी ओवर 70% ऑफ इट्स फ्री ट्रैफिक। रोड्स इन इंडिया कैरी ओवर 70% ऑफ इट्स फ्री ट्रैफिक। देखो, आप कहीं से कहीं भी गुड्स को भेज सकते हैं थ्रू marine transport, through inland transport, through railways, through airways, but eventually you will need good roads, because
ट्रेन कैन नॉट कैरी द फ्रीट अप टू योर शॉप्स, अप टू योर वेयर हाउस। थोड़े के लिए भी तो ट्रैक से उतार के टाटा मैजिक में रख करके वेयर हाउस तक ले जाने को भी एक पक्की रोड चाहिए कि नहीं चाहिए? तो रोड तो 70% कैरी करती ही है। ट्रेन एक पॉइंट तक कर सकते हैं, नोडल पॉइंट्स बना देंगे, वहां से ले कि भाई यहाँ से लेकर के जाओ आगे तक, वहां से छोड़ देना, वहां पे फिर ट्रक मिल जाएगा खड़ा होकर। इतना हो सकता है। या एयरपोर्ट पे ऐसा हो सकता है, एयरपोर्ट पर के ट्रक खड़ा होगा, वहां से लेकर जाएगा, कंटेनर्स खड़े होंगे। बट बाकी तो फिर पूरा अंदर ही अंदर। ठीक है, लिखिए। and about 85% of passenger traffic, and about 85% of passenger traffic, 85% of passenger traffic। भाई शहरों में भी तो ट्रैफिक सड़कों पे चल रहा है। देखिए नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 is the longest national highway of India. National Highway 44 is the longest national highway of India, which coincides with north-south corridor, connecting Srinagar to Kanyakumari, नए एम्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है, मंडी में, कुल्लू में, बिलासपुर में। मैं पहले भी बोला हूं कि ऐसा क्रूड आंसर ना दिया कीजिए। हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कितने एम्स हो गए टोटल बढ़ करके अब? ये बताओ, कितने स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ एक भी एम्स नहीं है? ये बताओ। तो आपकी जानकारी में सवाल कहां से बनेगा, तो वो मैं बता रहा हूँ। किसी को क्या मतलब इस बात से बिलासपुर में एम्स बन गया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये तो भाजपा के काम की चीज है कि बिलासपुर में एम्स बन गया, वो अगली बार चुनाव में बोलेंगे। हमारे काम कहाँ आएगा जब हम ये बात मेंस में अपने आंसर में लिखेंगे कि यद्यपि एम्स खुल तो रहे हैं पर अभी भी इतने स्टेट्स बचे हुए हैं जहाँ पे एम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आइडियोलॉजी क्या थी? अंत्योदय की। आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी इंसान तक। तो हमें तो चाहिए ओवरऑल इंडिया में एम्स की कवरेज, आईआईएम की कवरेज, आईआईटी की कवरेज, तीनों चीजें होनी चाहिए हर स्टेट में एक एक। ठीक है, लिखिए। NH 548 देश के वो कौन सा शहर है जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं? अरे शहर पूछ रहा हूं मैं। हाँ, वो कौन सा शहर है? देश में एक ही जगह है जहाँ पे आईआईटी और आईआईएम दोनों है। इट इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इंदौर। अभी फिर से क्लीनेस्ट हो गई। पर्सनली आई हैव बीन टू इंदौर, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग means on the way on relying upon you can say that Indore is the cleanest city. There's nothing. वो देहरादून ज्यादा साफ मुझे लगा, पर ठीक है कोई बात नहीं होगी। देखिए, अरे खड़ा रहने दो यार, क्या करना है। देखिए NH 548 is the shortest national highway of just 5 kilometers. National NH 548 is the shortest national highway of just 5 kilometers. आप में से कितने लोग हैं जो कार ड्राइविंग जानते हैं? आप जानते हैं, जो चलाते हैं, मतलब जिन्होंने चलाते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? थोड़ा है। देखिए इट इज नियर पनवेल। एक बार फिर से हाथ खड़ा करना, कौन कौन लोग चलाते हैं गाड़ी? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और SUV किस किस के पास है किसी के पास? आपके पास है? कौन सी गाड़ी है? स्कॉर्पियो। ठीक। देखिए CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। फंस गए अब आप लोग।
CSIR Central Road Research Institute is located in New Delhi. Is located in New Delhi. लिखिए टाइप्स ऑफ रोड. टाइप्स ऑफ रोड. First is expressway. First is expressway. Maintained by NHAI. Maintained by NHAI. आप बताओ, आपको ड्राइविंग आती है. What is the full form of NHAI? अरे 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 बताना कौन उत्सुक है ज्यादा जवाब देने के लिए, फिर मैं उससे सवाल पूछूं. हाँ, नेशनल हाईवे. आगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI लिखिए. एक्सप्रेसवेज मेंटेन्ड बाय NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण. लिखिए नेक्स्ट इज नेशनल हाईवेज. नेशनल हाईवेज मेंटेन्ड बाय NHAI एंड NHIDCL. इसको यहाँ NHIDCL ही लिख लो, मैं आगे इलेबोरेट करवा दूंगा. मेंटेन्ड बाय NHAI एंड NHIDCL नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ये मैं डिटेल में लिखवा दूंगा, चिंता ना करें. थर्ड इज स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवेज मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट PWD डिपार्टमेंट. मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक PWD डिपार्टमेंट. ऑब्लिक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब जगह PWD डिपार्टमेंट. जैसे यूपी में क्या है, यूपीडा करके एक उन्होंने बना दिया है. यूपीडा एक अलग से अथॉरिटी क्रिएट कर दी है, तो उनका काम है वो स्टेट में, क्योंकि अच्छे लेवल पर अगर बनाने हैं तो PWD तो ठीक है. PWD की इमेज कैसी है हम सभी जानते हैं. तो अगर हमें सड़कें अच्छी बनवानी है जो बारिशें झेल सकें, तो हमें एक अलग से ईयर मार्क्ड अथॉरिटी की जरूरत है. नेक्स्ट लिखिए डिस्ट्रिक्ट रोड्स मेंटेन्ड बाय जिला परिषद. डिस्ट्रिक्ट रोड्स मेंटेन्ड बाय जिला परिषद. नेक्स्ट रूरल रोड्स. रूरल रोड्स मेंटेन्ड बाय ग्राम पंचायत. रूरल रोड्स मेंटेन्ड बाय ग्राम पंचायत. नेक्स्ट बॉर्डर रोड्स मेंटेन्ड बाय BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. ये इस देश के सबसे बेहतरीन विभागों में से एक है BRO. जैसे सबसे अच्छा PSU ONGC को बोला जाता है. ONGC देश की शान है. ONGC और ONGC विदेश लिमिटेड OVL. ठीक इसी तरीके से ये लोग हैं, ये देश की शान है. देखो जिस समय पहाड़ टूटते हैं, बोल्डर टूटते हैं, लैंडस्लाइड होता है, सबसे पहले BRO की नाम DM साहब को याद आता है. तो पहले BRO से संपर्क करते हैं, भाई पहले रास्ता तो खुलवाएं, जाम लगा हुआ है. एक नोट लिख लेंगे. नोट विलेज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय विलेज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. by पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थ्रू कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था PRI के लिए? 73rd था और ULB का 74th था. थ्रू द फंड्स एलोकेटेड बाय वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक. कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? मनीला, फिलीपींस. न्यू डेवलपमेंट बैंक कहां पर हेडक्वार्टर? शंघाई. न्यू डेवलपमेंट बैंक ठीक कब बनी थी? 15 में. 14 में पास हो गया था, 15 में एग्जिस्टेंस में आ गई थी. कौन सी समिट? फोर्टालिजा समिट, ब्राजील, ब्रिक्स की. लिखिए नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये हम फंड्स पढ़ रहे हैं, कहां कहां से पैसा आएगा तो बनाएंगे.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ नाबार्ड एक्सेट्रा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ नाबार्ड एक्सेट्रा। मैंने उस दिन भी आपको बताया था जब मैं RIDF आपको पढ़ा रहा था, क्या बोला था कि RIDF का पैसा अलग है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा अलग है। ऐसा ना सोचा जाए कि दोनों का एक ही पैसा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो बन रही है वो RIDF के पैसे से बन रही है, नहीं। हेडिंग डालिए एक्सप्रेस वेज, एक्सप्रेस वेज। लिखिए एक्सप्रेस वेज are the highest quality roads, fast moving, highest quality fast moving roads in India. Expressways are the highest quality fast moving roads in India, giving speedy traffic movement facility, giving speedy traffic movement facility। जैसा उसका नाम है, यथा नाम तथा गुण, एक्सप्रेस वे है वो, उस पर तेजी में चलने के लिए है। धीरे चलेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे जहां जाना सभी को ही है एक ना एक दिन। स्पीडी ट्रैफिक मूवमेंट फैसिलिटी। There are several national as well as state expressways. There are several national as well as state expressways which are either functional or going to be functional very soon, which are either functional or going to be functional very soon। 2023-24 तक, 23 में ज्यादातर पूरे हो रहे हैं क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी और 24 में चुनाव है, तो रिपोर्ट कार्ड भी देना है, वोट भी मांगना है, तो 23 तक सब कुछ करना पड़ेगा। लिखिए नेशनल एक्सप्रेसवे फर्स्ट, नेशनल एक्सप्रेसवे 1 कनेक्टिंग अहमदाबाद टू वडोदरा, कनेक्टिंग अहमदाबाद टू वडोदरा, विद इन ब्रैकेट लिख लीजिए 93 किलोमीटर्स, became the first national expressway of India, became the first national expressway of India। It was completed in 2004, it was completed in 2004। अहमदाबाद को वडोदरा से जोड़ता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे is the longest highway, longest expressway of India। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे is the longest expressway of India। ये देखिए, ये तो समझा दूंगा मैं, ये पूर्वांचल आपको इसमें नजर आ रहा है, दिख रहा है क्लियर सभी को पीछे? लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया कवरिंग 340 किलोमीटर्स, कवरिंग 340 किलोमीटर्स लेंथ, फुल स्टॉप, 340 किलोमीटर लेंथ, फुल स्टॉप। इट कनेक्ट्स लखनऊ विद गाजीपुर, इट कनेक्ट्स लखनऊ विद गाजीपुर। It was constructed by Uttar Pradesh Expressways, Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority, Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority, within bracket लिख लेंगे UPEIDA, UPEIDA, UPEIDA। एक इनके बड़े विश्वास पात्र IAS अधिकारी हैं, राइट हैंड कहे जाते हैं, अब तो क्या रिटायर हो गए, अवनीश अवस्थी। वो इनके मतलब योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बड़े भरोसे के आदमी हैं, गोरखपुर के DM भी रह चुके हैं एक टाइम में, तो तब से वो जान पहचान, और अब तो उसका वो फ्रूट रीप कर रहे हैं, अब रिटायर हो गए।
तो उनको इसका चेयरमैन बना दिया गया था। आपने यदि कभी लोक गायिका मालिनी अवस्थी का नाम सुना हो, बहुत फेमस है, पद्मश्री अवार्डी हैं, उनके हस्बैंड हैं। लिखिए, इट इज एन कंट्रोल्ड एक्सेस रोड, इट इज अ कंट्रोल्ड एक्सेस रोड with an airstrip in सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, with an airstrip in सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। ये रहा सुल्तानपुर, देखिए नजर आ रहा है। लखनऊ से जब गाजीपुर जा रहे हैं तो बीच में सुल्तानपुर पड़ रहा है, आजमगढ़ पड़ रहा है, मऊ डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है, और ये गाजीपुर है। और इसके बाद बिल्कुल गाजीपुर के बाद बिहार का बॉर्डर लग जाता है, बिहार स्टेट शुरू हो जाता है। सुल्तानपुर में एक एयर स्ट्रिप भी है इसके ऊपर, तो युद्ध है या कुछ है या कोई वीवीआईपी विजिट है तो वहां पर एरोप्लेन उतार दिया जाएगा। एक्सेस कंट्रोल का मतलब देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं। कंट्रोल्ड एक्सेस रोड जो मैंने बताया, कंट्रोल्ड एक्सेस रोड वो होती है जिसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होता। जैसे आप यहां से जा रहे हैं, मान लीजिए आप नेशनल हाईवे पे चले, आप नेशनल हाईवे तो अपना ये जोगीवाला से शुरू हो जाता है, पर उसमें फिर आप जाते हैं तो आगे जाते हैं तो मोकमपुर के आगे फिर मियांवाला वगैरह का जो एरिया पड़ रहा है वहां पे, ठीक है, नकरौंदा की क्रॉसिंग आ जाती है। फिर आगे हर्रावाला में वो क्या बना हुआ है जो लक्ष्मण जी का जो मंदिर है, तो वो लक्ष्मण सिद्ध। तो जैसे जैसे आगे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो उसमें नेपाली फार्म पहुंचते पहुंचते तो बहुत सारे बीच में ट्राई जंक्शन आ जाते हैं, टी पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये कंट्रोल्ड एक्सेस नहीं है। अगर किसी भी एक्सप्रेस वे पे सिग्नल लगा हुआ है, मैं कह रहा हूं इवन वो ब्लिंक ही कर रहा है कि आपको अलर्ट होकर निकलना है, दैट इज नॉट एक्सेस कंट्रोल्ड। एक्सेस कंट्रोल्ड रोड वो है जिसमें दोनों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, वो रोड थोड़ी एलिवेटेड होती है, थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है, फ्लाईओवर जितनी नहीं पर उठी हुई होती है, और वो आपने यहाँ से टोल कटा आपका और आपको जहां तक जाना है आप जाइए। अगर जिनको उतरना है तो स्लिप रोड्स बना दी जाती है, स्लिप रोड्स बना दी जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक फोटो दिखा देता हूँ। तो एक्सेस कंट्रोल्ड का मतलब समझेंगे। दिल्ली मेरठ का मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक दिस इज द दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इट इज द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया, सबसे चौड़ा, इससे ज्यादा चौड़ा अभी तक कोई नहीं है। आप ये देख पा रहे हैं, ये होती है स्लिप रोड्स, नीचे उतर गई, और ये ढाल जैसी होती है क्योंकि ये तो उठा हुआ है, ये तो ऊपर है। तो इससे अगर आपको सिटी के लिए उतरना है तो आपको ढाल जैसी जाएगी ऐसे गोल घूमती हुई, और ये नीचे जाकर के फिर इसके नीचे जो रोड चल रही है उस पर मिल जाएगी। और सिमिलरली अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो फिर वो एक रोड आ रही है, वहां से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। पर ऐसा नहीं होगा कि 90 डिग्री पर आकर के आपको या इधर से इधर जाना है। आप अभी यहाँ से दिल्ली वाला हाईवे पकड़ लो तो आपको वहां पे छुटमलपुर वाला वो मिलेगा, एक रोड आ रही है, फिर शामली वाला भाई वो मिल जाता है रोड, वहां पे अलर्ट होने की जरूरत है। अगर आपको ब्रेक ही लगाना तो एक्सप्रेस वे फिर किस बात का हुआ? ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आप चाहे यमुना एक्सप्रेस वे पे जाओ, वो भी एक्सेस कंट्रोल्ड है, स्लिप रोड्स बनी हुई हैं। जिसको वृंदावन के लिए उतरना है वो वृंदावन उतरे, जिसको आगरा के लिए उतरना आगरा के लिए, हाथरस के लिए उतरना हाथरस के लिए, पूरा एक्सेस कंट्रोल्ड है। तो एक्सेस कंट्रोल्ड रोड वो होगी जहां पर बीच में कोई नहीं घुस सकता, ठीक है, आने और जाने के लिए स्लिप रोड्स बनी रहती हैं। देखिए, नेशनल एक्सप्रेस 3, that is Delhi Meerut Expressway, is the widest expressway of India. Delhi Meerut Expressway is the widest expressway of India। और इस समय जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास की तस्वीर है। ये वो जगह है जहां पर ये सबसे चौड़ा हो जाता है, 14 लेन में आ जाता है, 14 लेन, 14 लेन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अक्षरधाम के पास से ली गई फोटो है। लेकिन नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यही है वो फ्लाईओवर अक्षरधाम वाला, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी सबसे बड़ी खास बात थी ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। लिखिए, NHDP was started in the year, NHDP was started in the year, which year?
90? कौन थे प्रधानमंत्री 90 में? कौन से प्रधानमंत्री ने शुरू किया? याद नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री की लिस्ट? राष्ट्रपति को याद मत रखो चलेगा, उपराष्ट्रपति को तो बिल्कुल ही याद मत करो, वो भी चल जाएगा, बट प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो पता रहना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे इन द ईयर 1998, एंड हु वाज द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर? एम थम्बीदुरई, AIADMK से लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे, और उनके हट जाने के बाद से अभी तक कोई लोकसभा में डिप्टी स्पीकर है ही नहीं। एम थम्बीदुरई, आपको पता होना चाहिए, इस समय लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है, क्योंकि आप संसद टीवी की प्रोसीडिंग्स नहीं देखते, इसलिए आपको पता नहीं है। लिखिए, इट वाज स्टार्टेड इन 1998 अंडर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, अंडर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, full stop. M Thambidurai used to be the transport minister then. Sri M Thambidurai used to be the transport minister then. Sri M Thambidurai used to be the transport minister then. This project is managed by NHAI under MORTH. This project is managed by NHAI अंडर मॉर्थ। NHAI मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मॉर्थ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। देखिए, अंडर NHDP 49,260 kilometers of roads and highways, 49,260 kilometers of highways and roads were constructed. आपको पता है NHAI गिनीज बुक उसका रिकॉर्ड होल्डर है सड़क बनाने को लेकर के, सबसे तेज 5 दिन में अकोला से कहां तक। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसमें कोई कमी नहीं है आपकी ओर से। 49,260 किलोमीटर्स। इट इज टू बी नोटेड, अगर आप अकोला तक पहुंच गए ना तो आप सक्सेस तक भी पहुंच जाएंगे, मैं ये बता सकता हूं। इट इज टू बी नोटेड दैट नेशनल हाईवेज कॉन्स्टिट्यूट अकोला एक बहुत बड़े चित्रकार की कर्मभूमि रही है, राही मासूम रजा। ठीक है, तो उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री तीनों ही मिल गए थे उन्हें, इतने महान थे। और मॉडर्न आर्ट का इंडिया में उन्होंने, जैसे पाब्लो पिकासो जो काम विदेश में कर रहे थे, वो काम उन्होंने भारत में किया था। देखिए, it is to be noted that national highways constitute only 2% of the total road length of India, but they carry 40% of total traffic. In 2018, NHDP was subsumed with Bharatmala परियोजना। NHDP was subsumed with Bharatmala परियोजना। देखो, मैंने मैसेज डलवाया था सुरेंद्र जी के माध्यम से, क्योंकि मेरा ये काम था बताने का कि मैं वो सब चीजें नहीं पढ़ाता, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा और ज्यादा मैं पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। तो जो लोग अभी कोचिंग नहीं आ रहे, जो छोड़ भी रहे हैं ना, उनको एक बार अपने नोट्स दिखा देना। जब अभी नहीं, अभी तो दिवाली की छुट्टियां पड़ेंगी, तब फोटो खींच के थोड़ा सा दिखा देना, तब उनको पता चले कि हानि क्या हुई। भाई अभी तो आप बता दोगे तो अलर्ट हो जाएंगे, तो हानि हो नहीं पाएगी, पहले हानि होने का इंतजार करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली देखो मेहनत करता हूँ, पहले आपको बताने से पहले। आई डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मेरे पास कोई लैपटॉप टैब है नहीं। आपको जो एग्रीकल्चर के नोट्स लिखवाए थे
ये देख लो, ये पेज की नंबरिंग हुई है, ये 170 पेजेस थे, 170 पेजेस, 170 पन्ने, जो कि मैं रोज पहले खुद लिखता था, उसको पढ़ता था, सरकारी वेबसाइट से डेटा को चेक करता था, और उसके बाद आपको जाकर के यहाँ पे खाना परोसा जा रहा था। समझ रहे हैं? इतनी सिक्योरिटी ओबामा की भी नहीं थी जितनी आपके लिए कर दी गई। लोग आ नहीं रहे, और आप भी आ रहे हैं तो आप वो जवाब नहीं दे रहे। तो इसलिए ऐसा होता है कभी कि उस टाइम जिस समय, ये जो समय होता है ना लिखने का, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी थोड़ा सा कभी हो सकता है आलस आ सकता है, मेरे मन में ये वाली बात जागनी नहीं चाहिए कि अरे यार क्या करना, जितना करा रहे उतना ही तो नहीं हो रहा। तो वो चीज मत लाने दीजिए, मेरा बस इतना सा कहने का मतलब। ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, सब, मैं तो सभी को पढ़ा रहा हूँ और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है वो मुझे दिख नहीं रहे तो वो मेरे जहन में नहीं है, सब है। पर जो लोग नहीं आए हैं ना, उन्होंने बहुत गंभीर खतरा मोल ले लिया। ठीक, क्योंकि मैं वो चीजें यहाँ पे बता दूंगा जो ना आपको कभी आप उसमें किसी कोचिंग सेंटर के उसमें पढ़ेंगे। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो अपना नीरशीर विवेक लगाते हैं, उनको लगता है ये सही है कि ये गलत है, इतना करा देंगे तो ठीक रहेगा। वो तो है नहीं पेपर डिसाइड कराने वाले। क्यों नहीं ऐसा हो रहा कि बच्चे ये तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, दूसरों का क्यों बताऊं। मैं एक बहुत महान कोचिंग सेंटर है, भगवान चला रहे हैं उसे दिल्ली में, उनका मैं 1.5 साल का 18 महीने का करंट अफेयर पढ़ के गया, एक भी सवाल नहीं आया, एक भी नहीं आया, एक सवाल नहीं आया। और मैं आपको आज भी वो कॉपी दिखा दूं जिसमें मैंने अपना हफ्ते का रूटीन लिखा हुआ था विद तारीख, ये कि ये मेरा चार्ट है, रिवीजन का चार्ट। ठीक है, हनुमान चालीसा की तरह करंट अफेयर याद थे मुझे, आए ही नहीं, आते तब तो करते, आए ही नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो इज देयर उसी दिल्ली में, आई भी है, जो कि सरकार के कहने पर ये इंश्योर कराने का काम कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहे, किसान का लड़का भी आईएएस बनना चाहिए। तो ठीक है, तो आप, मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे यदि चीजें बता रहा हूं और आप उसको हल्के में ले जाएंगे, मतलब आपसे नहीं कह रहा, आपके उन साथियों से जो आज अदृश्य हैं, जो मुझे नजर नहीं आ रहे, लिखिए। और कोई बात नहीं, मेरी बात वहां तक पहुंचाना मत, छुट्टी पड़ जाने दो और 28 में ही आने दो, लेट द टाइम कम, इट विल डिसाइड कि मैं सही हूं या वो सही है। फर्स्ट फेज लिखेंगे, लिखिए एनएसडीपी हैड डिफरेंट फेजेस, एनएसडीपी हैड डिफरेंट फेजेस, 7 फेज थे इसके, एनएसडीपी हैड डिफरेंट फेजेस। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट फेज, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिंग 4 मेजर सिटीज, connecting 4 major cities of Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता लिखेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। जो दिल्ली से कोलकाता जाने वाला हाईवे है उसी पर ही अकबर का मकबरा बना हुआ है, इस बात को ध्यान में रख लेना। कभी आपसे पूछ लिया जाए, सिकंदरा बोलते हैं अकबर के मकबरे को, अकबर ने खड़े होके बनवाया था। मुझे तो बड़ा, जिस दिन मैंने ये बात सुनी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इंसान अपने मरने की ऐसी भव्य तैयारी भी कर सकता है क्या। पर वो बड़े थे भाई, हमने तो अपने घरों में कभी नहीं सुना कि हम जो है अपने जीते जी अपनी लकड़ियां सेट करवा देंगे, भाई इस जगह पर होगा हमारा अंतिम समय, ऐसा कभी हमने नहीं सुना। या चंदन की लकड़ियां आएंगी, शीशम की लकड़ियां, ऐसा कभी, वो तो उन्होंने तो, अरे आप उसकी महिमा देखते रह जाएंगे, उसमें जो 4 बाग लॉन्स हैं सिकंदरा में केवल उनके लिए हैं। और हम लोगों को पता है उनकी एक बीवी थी जोधाबाई, आप वहां जाकर देखिए आपको पता चलेगा उनकी कितनी बीवियां थी। चारों तरफ ऐसे वो किले वो बने हुए हैं, कब्रें बनी हुई ऑन दी, जस्ट ऑन द हाईवे। सिमेट्री ऐसी कि आप टिकट काउंटर पर जाएं, टिकट खरीदेंगे और आप सामने देखेंगे आपको बल्ब जलता नजर आ रहा है, हाईवे से बल्ब जलता नजर आ रहा है। और वो एक एलईडी का बल्ब है, वो अकबर के कब्र के ऊपर ठीक जल रहा है, ठीक कब्र के ऊपर जल रहा है, वो हाईवे से चमक रहा है अंदर अंधकार में। सिमेट्री, जितना इधर उतना इधर, बीच में क्लाइंट डाल दो, सिमेट्री यही तो होती है। देखिए
इट वॉज कंप्लीटेड इन जनवरी 2012। मैं आपको ये इसका बता दे रहा हूँ लेंथ कितनी कितनी है। लिखिए दिल्ली टू मुंबई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में हम लेंथ लिख लेते हैं चारों की। दिल्ली टू मुंबई 1419, दिल्ली टू मुंबई 1419। नितिन गडकरी जी ने कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर 12 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से मुंबई। वो एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है, ठीक है। 1419। फिर मुंबई से चेन्नई 1290, 1290 मुंबई टू चेन्नई। देन चेन्नई टू कोलकाता 1684, चेन्नई टू कोलकाता 1684। देन कोलकाता टू दिल्ली 1453, 1453। प्रयागराज भी इसी में पड़ता है, फतेहपुर भी इसी में पड़ता है, पटना भी इसी में पड़ता है, आसनसोल, डाल्टनगंज, ये पूरा यही हाईवे है दिल्ली से कलकत्ता वाला, ठीक है। ये यूपी, झारखंड बॉर्डर, बिहार और बंगाल पूरा ये क्रॉस करता हुआ जाता है। सिमिलरली ये तो ये राजस्थान गुजरात होता हुआ जा रहा है। भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, वापी, वलसाड, ये वो वाला भरूच, बम्बई वो रूट है, वडोदरा। यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो ये बेंगलोर होते हुए जा रहा है, ठीक है। चिकमगलूर वगैरह पड़ेगा कर्नाटका में। इधर से यहाँ पे जाएंगे तो ये ओंगोल, विशाखापट्टनम होता हुआ कलकत्ता पहुंचेगा, भुवनेश्वर होता हुआ कोस्ट पे चलेगा। तो आपको आप पता चल गया कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के चारों सेगमेंट्स में सबसे लंबा सेगमेंट है चेन्नई टू कोलकाता। प्रीलिम्स में अगर एक स्टेटमेंट आ जाए तो हो सकता है ऐसा। देखिए सेकंड फेज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विद इन ब्रैकेट लगिए श्रीनगर टू कन्याकुमारी 4076 किलोमीटर, श्रीनगर टू कन्याकुमारी 4076 किलोमीटर, 4076। कहां तक हिंदी आती है? 30 तक, 30 तक, 40 तक, कितना तक आती है? अरे प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है। लिखिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर कन्याकुमारी 4076 एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर विद इन ब्रैकेट सिलचर टू पोरबंदर, सिलचर टू पोरबंदर। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था ना, किस साल हुआ था? 1869, ठीक है। और भारत कब लौटे थे? लिखिए 3300 किलोमीटर्स। सबसे पहली पब्लिक अपीयरेंस कहाँ हुई थी लौटने के बाद? चंपारण में हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई थी, 3300 किलोमीटर। वहीं पे तो राजकुमार शुक्ला की मुलाकात हुई थी, उनके आग्रह पर वो मोतिहारी गए थे। मोतिहारी ईस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में? वेस्ट चंपारण में। जवाब देते रहो, मैं उस पॉइंट तक लेकर के छोड़ता हूँ जब मुझे बड़ा मजा आने लगता है, जब जवाब आने लगते हैं फिर मैं अपना खेल चालू करता हूँ, फिर बहुत मौज आती है? ठीक है कोई बात नहीं। इट इज ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण के मजिस्ट्रेट ने कहा था कि आप पे जुर्माना लगेंगे, उन्होंने कहा हम नहीं पे करेंगे, उन्होंने कहा बिना पे किए चले जाओ, पर चले जाओ बस यहाँ से, रेलगाड़ी पकड़ो और निकलो। आपने तो बिल्कुल हमारी तो जड़ें ही हिला दी हैं 24 घंटे में, जो इतने साल में नहीं कर पाए आपने आगे 24 घंटे में कर दिया। बस निकल जाओ, माफ करो हमें। पर वो नहीं गए। लिखिए it was completed in 2009। कितना किलोमीटर? 7142 किलोमीटर है पूरा टोटल मिलाकर के, 7142 किलोमीटर 2009 में बनके तैयार। थर्ड फेज अपग्रेडेशन ऑफ, थर्ड फेज में लिख रहे हैं अपग्रेडेशन ऑफ 12,109 किलोमीटर्स, अपग्रेडेशन ऑफ 12,109 kilometers of national highways, on build, operate and transfer। कैपिटल में लिखेंगे build, operate and transfer, BOT मॉडल, बॉट मॉडल फॉर बेटर कनेक्टिविटी। कहाँ छूटा? अरे विपुल भाई हमें बताओ यार, हाँ पूरा ही। अपग्रेडेशन ऑफ 12,000
109 kilometer of national highways on build, operate and transfer BOT model for better connectivity to state capitals and economic hubs. BOT model for better connectivity to state capitals and economic hubs. जब रेलवेज पढ़ाऊंगा तो भारत की प्रीमियम ट्रेन्स भी बता दूंगा, सबसे पहले कब लॉन्च हुई, कौन सी सर्विस कहां तक गई। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जब लोग आईएएस की तैयारी करना शुरू करते हैं, बहुत से लोग कभी कभी क्या होता है दबाव में आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो वो लोग फिर हाथ पैर मारने लगते हैं, तो इधर उधर के भी एग्जाम देने लगते हैं। तो मैं ऐसा कर दूंगा कि थोड़ा बहुत ठीक है सब कवर हो जाएगा। लिखिए फोर्थ फेज, वाइडनिंग ऑफ 2000 किलोमीटर्स, ध्यान से लिखिए फोर्थ फेज, वाइडनिंग ऑफ 2000 किलोमीटर्स हाईवेज, 2000 किलोमीटर्स लॉन्ग हाईवेज that were not covered hitherto, मतलब अभी तक के जो 3 फेजेस हुए उसमें नहीं कवर किए गए थे। that were not covered hitherto, HITHERTO, full stop. It was aimed at converting existing single lane highways into 2 lanes with paved shoulders, into 2 lanes with paved shoulders, into 2 lane with paved shoulder. shoulder का मतलब क्या होता है जानते हैं? साइड में गाड़ी पार्क करने के लिए। भाई कहते हैं गाड़ी हमेशा शोल्डर पे रोके, ऑलवेज पार्क योर कार व्हेनेवर ट्रेवलिंग ऑन अ हाईवे, ऑलवेज स्टॉप योर कार ऑन शोल्डर्स ओनली। एक नियम है, एक लाइन बनाई जाती है, ठीक है। आपने हाईवेज पे देखा होगा ट्रक ले बाय करके लिखा रहता है कि ट्रक को खड़ा करने के लिए, तो वो ऐसे अलग हट करके एक रास्ता और वहां पे एक प्लेटफॉर्म जैसा बना दिया जाता है, ट्रक ले बाय। किसने देखा है, किसने नहीं देखा है ट्रक ले बाय लिखा हुआ? ट्रक्स को खड़ा करने के लिए रहता है। ठीक इसी तरीके कमर्शियल गाड़ियों के लिए, तो ट्रक्स के लिए तो चलो उन्होंने ट्रक ले बाय के लिए अलग बना दिया, पर नॉर्मली जैसे आपको रुकना है, मान लो इंस्टाग्राम के लिए फोटो खींचनी है कि हम हाईवे पे चल रहे हैं साहब, पता भी तो चले दुनिया को कि मैं हाईवे पे चल रहा हूँ। अब मैं गाड़ी कहाँ रोकूं, मुझे फोटो खींचनी है, उतरना है, तो मैं शोल्डर पे गाड़ी रोकूंगा, तब मैं उसके आगे बोनट पे चढ़ के बैठूंगा, तब मेरी फोटो खींचेगी, एंड देन इट विल बी अपलोडेड ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। इसलिए शोल्डर बनाए जाते हैं सरकार के, आप मर ना जाए बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी कर दिया तो। लिखिए फिफ्थ फेज, अपग्रेडेशन ऑफ 5000 किलोमीटर लॉन्ग, upgradation of 5000 kilometer long 4-lane roads, upgradation of 5000 kilometer long 4-lane roads into 6 lanes। ये सिंगल लेन का मतलब समझे क्या? कितने लोग हैं जो भिवाड़ी से अलवर गए हुए हैं? मैं गया हुआ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ वहां का। अरे भाई उस रास्ते पे तो आप बिल्कुल ओवरटेक नहीं कर सकते, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, ऐसे ही चलते रहो। अच्छा इंडस्ट्रियल बेल्ट है तो बड़े लंबे लंबे ट्रक चलते हैं, जब तक आप उस ट्रक को, अरे ट्रक छोटा तब तो हम स्पीड में करें भी, 10-10 एक्सेल के ट्रक लेकर के निकल पड़े सड़क पर, रेलगाड़ी जैसा ट्रक है। अरे किसको गुस्सा आ गया भाई यहाँ पे और जब तक मैं उसे वो कर भी पाऊं ओवरटेक, तब तक सामने से बस आ रही है, हम तो कर ही नहीं सकते ना, तो उसी स्पीड में चलते रहे जितना वो ट्रक चल रहा है, टन वजन लेकर के, उतना ही हम अपनी छोटी सी गाड़ी लिए चल रहे हैं मिस्टर बीन की तरह। तो इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा रोड को चौड़ा के, एटलीस्ट 2 लेन तो होनी ही चाहिए एक डायरेक्शन में जाने के लिए। भाई जिनको तेजी में चलना है वो डिवाइडर से मिला करके चल रहे हैं, और जिनको धीरे चलना है वो उधर अपने चलते रहे, क्योंकि हमेशा ओवरटेक राइट साइड से किया जाता है, ये पता रहना चाहिए। लिखिए सिक्स्थ फेज, कंस्ट्रक्टिंग 1000 किलोमीटर, कंस्ट्रक्टिंग 1000 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवेज। पहली बार एक्सप्रेसवे की बात 6th फेज में जाकर के हुई है। कंस्ट्रक्टिंग 1000 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवेज टू कनेक्ट मेजर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स।
टू कनेक्ट मेजर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स। जैसे आप ईस्टर्न पेरिफेरल पे चलो, वेस्टर्न पे चलो, केएमपी पे चलो, तो उसमें आपको मानेसर का एग्जिट आ जाएगा, उसमें आपको तावड़ू का एग्जिट आ जाएगा, उतरते चलो एक एक के बाद, जिसको जहां जाना है वो वहां जा सकता है। ठीक है, तो कनेक्ट कर रहे हैं और वहां पे सर्विस रोड बना दी गई है, स्लिप रोड्स। आप स्लिप रोड से नीचे उतरे, देखो ऐसा होता है हमेशा एक्सप्रेस वे पे जब आप चलेंगे तो आप इधर से अपना टोल कटवा लीजिए एंट्री के साथ, फिर आप उस पर चलना शुरू कर दो। अब उन्होंने बीच में नहीं होगा वो टोल नाका कहीं पर भी, वो कहां बना होगा, स्लिप रोड पे बना होगा। आपने जहां का एग्जिट लिया आप उस स्लिप रोड पे उतरना शुरू करोगे, वहीं आपको टोल का नाका मिल जाएगा। तो आपका वो जो फास्टैग से कैलकुलेट हो जाएगा, आपने वहां कटवाया था और अभी यहाँ पे कटा है उतना किलोमीटर्स का, वो अपने आप डिजिटल कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके हिसाब से पैसा कट जाएगा। ये चीज होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एंट्री लिया और आपका पैसा कट गया, नहीं, एंट्री लेकर के वो आपकी उसने एंट्री को फीड कर लिया है अभी एनपीसीआई ने, फास्टैग ने, और जैसे ही आप एग्जिट लेंगे वो अपने आप प्रोसेस करके पैसा काट लेगा। और ये मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होता है ये वाला काम। लिखिए, सिक्स्थ, improvement of city road networks, improvement of city road networks by adding ring roads, by adding ring roads, इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रिका मार्ग, by adding ring roads to enable easier connectivity, with national highways to important cities, national highways to important cities, easier connectivity with national highways to important cities. देखिए, भारतमाला परियोजना, ओ ओके 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 ओके, वन सेकंड, तो 7 हो तो गए, 7 था ना, तो 7 हो तो गए। अच्छा, सॉरी माय मिस्टेक। तो आप इम्प्रूवमेंट से जो पॉइंट लिखा है ना इंपॉर्टेंट सिटीज तक, उसको 7th पॉइंट बना लेंगे, भारतमाला परियोजना। इसको निकालिए। इसमें एक आपको अलग से एक्सप्रेस वो हाईवेज के लिए एक मैप दे दिया गया है। इंडेक्स में देखिए, इंडिया वाला सेक्शन में रोड्स कर करके दिया होगा, रोड्स एंड इनलैंड वाटरवेज, मेरे में 46 पर है। फोर्टी सिक्स पे दिया है, 47 पे इंडियन रेलवेज का मैप दिया गया है। देखिए, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपको दिख रहा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, दिखा, दिख गया, श्रीनगर टू कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ऐसे ही सिलचर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जहां से गुजर रहा है, वहां असम में बांग्लादेश के ईस्टर्न साइड सिलचर पड़ रहा है, सिलचर बिल्कुल डीप नॉर्थ ईस्ट में है सिलचर। सिलचर से गुजरात के पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर, यहाँ पे बंदर का मतलब ही है पोर्ट, बंदरगाह बोलते हैं ना पोर्ट को, तो बिल्कुल कोस्ट पर है वो। ये जोड़ रहा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और अब आप देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई जिसमें अजमेर भी पड़ रहा है, उदयपुर है, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच, सूरत, मुंबई,
तो दिल्ली से मुंबई ऐसे जा रहे हैं। नेक्स्ट मुंबई टू चेन्नई, कोल्हापुर बेलगाम, चित्रदुर्ग बेंगलुरु चेन्नई, मिल गया। फिर चेन्नई से नेल्लोर, ओंगोल, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, छतरपुर, कटक, भुवनेश्वर, पारादीप आउटर, ये बालेश्वर होते हुए, और रूरा जगह पड़ रही है ये, नहीं हावड़ा, हावड़ा लिखा है, और कोलकाता यहां तक जा रहा है। और अब यही जो कोलकाता वाला है ये बर्धमान, धनबाद, बनारस, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर होता हुआ सीधे पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचेगा। ठीक है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी आपने देख लिया, नॉर्थ साउथ भी देख लिया, ईस्ट वेस्ट भी देख लिया। ये वाला आप इस पे अपने कॉपी पे भी अपना पेज जो है वो मार्क कर लो। जब आप जो भी पढ़ेंगे, तो जब आप सरफेस ट्रांसपोर्ट पढ़ें तो आप एटलस का ये कंसर्न पेज ओपन कर लेंगे और इसके साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा। देख लो, दिल्ली से बंबई के रास्ते में अजमेर पड़ रहा है, दैट इज वाई अजमेर शरीफ की दरगाह इतनी फेमस है। मैंने उस दिन भी बोला था आपसे कि फुटफॉल ज्यादा होगा, भक्त ज्यादा आएंगे, तो मुरादें पूरी होने का रेशियो भी अपने आप बढ़ जाएगा। अब दिन में आया ही एक आदमी, उसकी मुराद पूरी हुई या नहीं हुई, पर 100 आए, 100 में से 10 की मुराद पूरी हो गई। उन्होंने वो खबर फैला दी कि हम तो बाबा के दर्शन करने गए थे, उनके 10-10 और आए। फुटफॉल बढ़ता जा रहा है, विजिटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई के मेन रूट पे पड़ रहा है। देख लो, मैंने तो आपको उस दिन कितने टाइम पहले मैंने ये वाली बात कही थी, अभी देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये देखो सामने है। देखिए, भारतमाला परियोजना, अगर आपकी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, फैक्ट बेस्ड है, मैं तो वो बात कभी देखो करता नहीं कि अलेक्जेंडर बिहार आया था। ठीक है, तो फैक्ट बेस्ड यदि आपकी बात है, आपकी बात कहीं गलत हो ही नहीं सकती। हाँ, नहीं तो कर आपको उसका प्रमाण मिल जाएगा। ठीक, लिखिए भारतमाला लॉन्च्ड इन 2015। भारतमाला का मतलब क्या है भाई? देश में स्पीडी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए एक ऐसी माला तैयार करना, इंटरकनेक्टेड। देखो देखो इसमें देखो, मैं उस समय आपको दिखाना भूल गया, ये देखो पूर्वांचल कहाँ गया, ये रहा लिंक्स पूर्वांचल। आप दिल्ली से शुरू हुए, यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए आप आगरा पहुंचे। दिल्ली से आपने यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ा ग्रेटर नोएडा से, और आप यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए आप आगरा पहुंचे। आगरा में आपको मिला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आप उससे वो कनेक्टेड है, कोई कहीं उतरना भी नहीं, कनेक्टेड है। तो आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पहुंचे। देखो ऐसे होता है। मैंने एक बार आपको दंडकारण्य की कहानी सुनाई थी। वशिष्ठ आए थे कि राम को भेज दीजिए कि हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है, वो ऐसे ही होता है। अब आप लखनऊ पहुंच गए, लखनऊ में उन्होंने क्या क्या कह दिया, लखनऊ से गाजीपुर के लिए बना दिया गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, देश का सबसे लंबा 340 किलोमीटर का। और आप जैसे ही गाजीपुर पहुंचेंगे तो गाजीपुर से आपको आगे फिर उधर गंगा वाला मिल जाएगा, वो पटना का मिल जाएगा। इसी तरीके से तो लिंक बन गया ना। तो एक ही क्या है, माला ही तो है। अगर एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के नोड्स को तैयार कर दिया जाए, फ्लाईओवर्स की एक रेंज तैयार कर दी जाए, रिंग रोड्स बना दी जाए, ट्रैफिक का सीमलेस मूवमेंट हो जाए, तो एक माला बन जाएगी जो पूरे देश को जोड़ सकती है। भारत माला इसी को बोल रहा है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ भारत माला। लिखिए, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड फंडेड प्रोजेक्ट, इट इज नॉट अ स्कीम, इट इज अ प्रोजेक्ट, centrally sponsored and funded project of government of India, and funded project of government of India। और इस देश में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बड़े ऊंचे ऊंचे लोग रहे हैं, नीतीश कुमार रहे हैं, राजनाथ सिंह रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे लोग जिन्होंने बहुत मतलब शिखर को हासिल किया है, ऐसे लोग ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज उन्होंने संभाली है। देखिए, आप एक बार लिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स देख लेना, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको कि कौन कौन लोग रहे हैं। देखिए, अंडर द प्रोजेक्ट स्पेशल एम्फेसिस हैज बीन लेड अपॉन, अंडर द प्रोजेक्ट स्पेशल एम्फेसिस हैज बीन लेड अपॉन
providing connectivity to far flung border and rural areas, far flung border and rural areas, far flung border and rural areas. Bharatmala project aims to, Sir, providing emphasis laid upon providing connectivity to far flung border and rural areas. भाई नॉर्थ ईस्ट के लोग पहले ये कहा करते थे जब दिल्ली आते हैं तो हमें लगता है हम विदेश आए। मेरे एक प्रिंसिपल थे, अब नहीं रहे, कोविड में उनकी डेथ हो गई, तो उनकी पोस्टिंग वहां रही, तेजपुर में रही थी या कहाँ रही थी, असम में कहीं रही, असम में नहीं सॉरी नागालैंड स्टेट में उनकी पोस्टिंग थी यहाँ। तो दीमापुर में उनकी पोस्टिंग, नागालैंड में पड़ता है नागालैंड दीमापुर में। वो बोले जब हमारी समर वेकेशन पड़ती थी तो लोग बोलते थे अब आप लोग विदेश जा रहे हैं, तो विदेश नहीं हम अपने घर जा रहे हैं, भाई देहरादून के रहने वाले विदेश क्यों जाएंगे। पर उनके लिए वही विदेश था। क्यों था विदेश? क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी। माइटी ब्रह्मपुत्र के ऊपर माइटी ब्रिजेस नहीं थे, और जब तक ब्रह्मपुत्र में बाढ़ चल रही है तब तक तो समझ लो वो जो डीप नॉर्थ ईस्ट है वो तो कटा ही हुआ है भारत से। जब धोला सदिया ब्रिज बन गया, जब भूपेन हजारिका सेतु बन गए, और अभी और उस पर और भी ब्रिजेस बनने को तैयार हैं, तब जाकर के कनेक्टिविटी अब बढ़िया हुई है। जब ट्रेन पहुंची है, न्यू हाफलॉन्ग में आपने देखा था लैंडस्लिप हुआ था, स्टेशन ध्वस्त हो गया था, पर एटलीस्ट ट्रेन तो पहुंच गई ना वहां तक। वो तो नेचुरल कैलेमिटी है, उसको तो हटा दो, मगर अब वहां पे कनेक्टिविटी हो रही है। तो ये हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं ना ये सब चीजें। इंडिया एट 75 अगर हम बात कर रहे हैं, और आगे से हमें 25 साल का जो 2047 तक का जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, तो हमें दिख रहा है कि अभी यहां तक चीज हो गई है विद इन 8 ईयर्स। तो अगर हम एक दशक के अंदर इतना कर पा रहे हैं, तो अभी हमारे पास 2.5 दशक और है, तो हम उस 2.5 दशक में और क्या कुछ कर सकते हैं वो उसका देखना है। भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो भारत जोड़ने के लिए यात्रा करने की जरूरत नहीं है। बात है जब आप पावर में आप एक्शन लीजिए, उसकी जरूरत है। भारत तो तब भी जुड़ा हुआ था, उसको अभी क्या जोड़ेंगे? वो तो सरदार पटेल जोड़ गए, आप क्या जोड़ रहे हैं? पर जब आप पावर में रहें तब लोगों को जोड़ो। नई दिल्ली जोड़नी चाहिए सबसे, तो दिल्ली को जोड़ने का अभियान है, भारत को जोड़ने का अभियान नहीं है। लोगों को पता चलना चाहिए कि उनका जिले का हेडक्वार्टर राज्य के हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है, और हर राज्य का हेडक्वार्टर देश के हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है। यहाँ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। तमाशेबाजी में तो कुछ नहीं रखा। लिखो, भारतमाला प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, एम्स टू कनेक्ट 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का क्या मतलब होता है? देवांश जी जल्दी से बता दीजिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग? जैसे मैं बोला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, चमोली का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गोपेश्वर है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का? बताओ आप बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर? जल्दी बता दो, समय के बहुत सीमित है, काम बहुत ज्यादा है। दिवाली भी मनाने के लिए आपको आजाद करना है सबको। यस, व्हाट इज द मीनिंग? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पुलिस हेड दोनों बैठते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, थोड़ा सा वोकैबुलरी को ठीक करना पड़ेगा। वो जगह जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठ रहा है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैठ रहा है, और जहां पर कोर्ट बनी हुई है। कलेक्ट्रेट, कोर्ट और ट्रेजरी तीनों एक साथ होती हैं। कलेक्ट्रेट, कोर्ट और ट्रेजरी तीनों एक साथ होती हैं। ये तीनों जहां पर होंगी दैट विल बी नोन एज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। आप यहाँ पे भी देख लो, प्रिंस चौक के पास में कलेक्ट्रेट भी है, कोर्ट भी है, ट्रेजरी भी है, तीनों चीजें एक जगह पर बनी है। ठीक है, दाखिल खारिज का काम भी हो रहा है, नए जो लैंड रिकॉर्ड वगैरह का जो काम है वो भी, कलेक्टर वाला काम भी, और कोर्ट भी वहीं बनी है। और वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होगी, और वहां पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी कोर्ट होगी, सीजेएम भी वहीं बैठेंगे। इसको जान लो, आप इस सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर?
जिला मुख्यालय से आप क्या समझते हैं भाई? जिला मुख्यालय ही वो जगह होगी जहां पे पीडब्ल्यूडी का कौन बैठेगा? सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता बैठेगा। पीडब्ल्यूडी का जो जिले का सबसे बड़ा होगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठेगा, सारे स्कूलों को देखने वाला। थोड़ा इसको लिख लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और इसको करेंगे, ये होमवर्क है आपका दिवाली वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये हॉलीडे होमवर्क करके लेकर आना। लिखिए। अगर नींव कमजोर है तो कोई भवन अच्छा सा टिक नहीं पाता, नींव को पहले दुरुस्त करना पड़ेगा। थ्रू अ मिनिमम 4 लेन हाईवे कनेक्टिंग 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थ्रू मिनिमम 4 लेन हाईवे। 4 लेन हाईवे चलना मतलब जरूरी है, होने चाहिए। 4 लेन हाईवे का मतलब है 2 लेन अप एंड 2 लेन डाउन। तो मिनिमम 4 लेन हाईवेज 550 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ना है। और वैसे भी सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास एक ऐसी पक्की रोड होनी चाहिए ऑल वेदर, जो उसको किसी ना किसी तरीके से स्टेट हेडक्वार्टर तक पहुंचने में मदद करे। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा कटा हुआ है तो वहां पर वो बनाने की जरूरत है। देखिए, इट्स कंपोनेंट्स आर फर्स्ट एनएचडीपी। मैंने आपको बता दिया कि 2018 में एनएचडीपी को सब्स्यूम कर लिया गया भारतमाला में। 3 साल हुए थे भारतमाला के, तब एनएचडीपी इसी में मिला दिया गया। तो फर्स्ट कंपोनेंट है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकंड कंपोनेंट नेशनल कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया। नेशनल कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया, तो 4 कॉरिडोर्स तो हो गए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, और 2 हो गए नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाले, तो 6 कॉरिडोर्स हो गए। याद रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो लिख लो। 4 कॉरिडोर्स इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड 2 कॉरिडोर्स इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 6 कॉरिडोर्स हैं। नेक्स्ट, नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी प्रोग्राम। नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी प्रोग्राम, नेशनल कॉरिडोर्स एफिशिएंसी प्रोग्राम। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट, ये जो नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी प्रोग्राम है, इसमें लिख लीजिए 30 रिंग रोड्स बनाने का लक्ष्य है। 30 रिंग रोड्स, समुद्र का मार्ग बनाना है। और रिंग रोड 2 तरीके की हो सकती है, एक तो सिंपल रिंग रोड होती है, एक आउटर रिंग रोड होती है। ठीक है, आउटर रिंग रोड आपको दिखेगी बेंगलुरु में, दिखेगी चेन्नई में। आउटर रिंग रोड वो गजब होती है, ORR बोलते हैं हैदराबाद में, ORR आउटर रिंग रोड। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने हैं। 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। नेक्स्ट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। भाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पढ़ाने का मुझ पे समय नहीं है, खुद पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाने वाला। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कनेक्टिविटी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कनेक्टिविटी। नेक्स्ट, लुक ईस्ट कनेक्टिविटी। लुक ईस्ट कनेक्टिविटी। भाई नरसिम्हा राव पॉलिसी लेकर आए थे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव की पॉलिसी थी, अभी उसको अपग्रेड कर दिया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। ठीक है, तो लुक ईस्ट कनेक्टिविटी का क्या मतलब है कि इंडिया का और म्यांमार का जो बॉर्डर है, ओपन योर एटलस, नॉर्थ ईस्ट निकालिए जल्दी से। नॉर्थ ईस्ट एटलस रखेंगे अपने साथ। ठीक है, 2 लोग हैं, दोनों अपना अपना रखो। भाई रैंक भी तो सब दोनों की अलग अलग आएगी ना, सैलरी भी अलग अलग आएगी, तो किताबें भी अलग अलग। पीछे आपके पास मैसेज डाल दिया था मैंने, मुझे पता है यार, मैं नया थोड़ी ना हूँ।
अभी तो तीसरा सब्जेक्ट हो गया मेरे लिए यहाँ पे। एक की बात हुई थी, सर ने कहा था एक पढ़ा दो सिद्धांत उस दिन, तो सर ने तो अभी तो 2 और लग गए लाइन में। अब मैं सोच रहा हूँ यार ठीक है। नॉर्थ ईस्ट निकाल लिया क्या? नॉर्थ में दिख रहा है आपको इंडिया चाइना म्यांमार का ट्राई जंक्शन, और साउथ में आपको मिल रहा है बांग्लादेश इंडिया म्यांमार का ट्राई जंक्शन। म्यांमार बॉर्डर देख लो, इंडो म्यांमार बॉर्डर मिल गया। तो ऊपर चाइना के साथ ट्राई जंक्शन, नीचे बांग्लादेश के साथ ट्राई जंक्शन। इस पूरे में ऊपर से लेकर नीचे तक हाईवे बनाने का काम है। दैट इज द लोकेस्ट कनेक्टिविटी कंपोनेंट भारतमाला का। मिल गया? आपको समझ में आ गई ये वाली बात? वहां पे कनेक्टिविटी करनी है भाई। हम यहां तक सड़क बना देंगे, उधर से म्यांमार वाले बना देंगे, ठीक है। फिर एक बार उसमें चले गए तो हम जो मैकोंग कंट्रीज है, मैकोंग कंट्रीज में आराम से हमारा दरवाजा खुला हुआ है, वहां तक बस सड़क पहुंच जाए, ठीक है। देखिए हेडिंग डालिए NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हम सब ने देखा है ये लोगो। कोई ऐसा जिसने ये लोगो ना देखा हो? कहीं ना कहीं तो जरूर बना देखा ही होगा NHAI। इसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिखिए NHAI is a statutory body established under NHAI Act 1988, established under NHAI Act 1988 in 1995. 1988 in 1995. It manages over 50,000 kilometers of national highways in India. It manages over 50,000 kilometers of national highways in India, which 50,000 kilometers, 50,000 kilometers of national highways in India, which is around 2% of India's total road length, which is around 2% of India's total road length. It comes under the administrative control of, Ministry of Road Transport and Highways. Administrative control of Ministry of Road Transport and Highways. जो आज नहीं आए ना उनसे बस इतना पूछ लेना, NHAI फिएट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, फिर देखना मजा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। भाई फिएट बॉडी वो है जो PM ने बोल दिया कि बना दो तो बन गई। PM तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब PM केवल इतना बोलता है भाई मेरी इच्छा है, तुरंत नोट करते हैं IAS ऑफिसर्स, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में एक बात होती है, साहब की इच्छा आदेश होता है। साहब ने बोला क्या ऐसा हो सकता है, वो वैसा करके दिखाएंगे विद इन अ वीक, वरना उनको वापस कि चले जिस रात से आए वहीं वापस जाइए, सेंट्रल डेपुटेशन समाप्त। तो क्या ऐसा हो सकता है, फिर वो पॉलिसी तैयार कर देते हैं। 3000 पन्ने की पॉलिसी आ गई है, नई आ गई है उसको। तो ये सब जो चीजें हैं फिएट बॉडी वो होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी अलग होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अलग होती है, सब जानते हैं। क्या मैसेज आ गया? ओ टेस्ट सीरीज 2023 किस किस का है भाई? सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, NCERT सप्लीमेंटेड बाय करंट अफेयर्स एंड PIB। अरे आप PIB तक पहुंच गए क्या? यहाँ पे अटेम्प्ट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। कौन पढ़ रहा है आप में से PIB? मुझे तो आज तक कोई नहीं दिखा। चलो एग्जाम के लिए पढ़ लेना। NHAI is the nodal agency. NHAI is the nodal agency for Bharatmala Pariyojana. For Bharatmala Pariyojana. It also manages
It also manages some expressways also. Some expressways. Full stop. In June 2002, NHAI created a Guinness World Record. In June 2022, NHAI created a Guinness World Record by building 75-kilometer long highway, 75-kilometer long highway between Amravati and Akola, in a span of just 5 days. In a span of Akola, yes, Akola, Akola, Maharashtra. Akola, in a span of just 5 days. लिखिए next paragraph. NHAI has signed a MOU. What is the meaning of MOU? Memorandum of Understanding. ठीक है. NHAI has signed a MOU with ISRO to utilize Gagan and Bhuvan satellite systems. Satellite systems. ये आप साइंस एंड टेक में सर आपको जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे. गगन एंड भुवन सैटेलाइट सिस्टम्स टू प्रिपेयर 360 डिग्री. ये गूगल पर ऑलरेडी है, गूगल मैप्स पर आप 360 व्यू ले सकते हैं, और उसका जो क्लियरिटी है और जो एक्यूरेसी है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो डेलिबरेटली अच्छी नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा नहीं है आप ज्यादा जूम कर करके क्या दुकान के अंदर झांक लो, किसी घर के अंदर झांक लो, तो नहीं कर सकते. हाँ, डिफेंस पर्पसेस में उतना भी हो सकता है. लिखिए, तभी ये होता है जब आप किसी को लोकेशन शेयर करते हैं तो वो लोकेशन थोड़ा ज्यादा दूर की आती है, तो पहले या तो आप उसको सेटल होने दो, उसका 4 मीटर पे 7 मीटर पे आने दो, तब आप दो. इतना तो आज के जमाने में कौन इंतजार करेगा, है ना. पर 4 मीटर पर अगर आपने लोकेशन भेज दिया तो वो ज्यादा ठीक रहती है. लिखिए, to prepare a 360-degree mapping of all national highways under its road asset management system, कैपिटल में लिखेंगे, road asset management system, RAMS, road asset management system. Similarly, next line, similarly NHAI has signed another MOU. Similarly, NHAI has signed another MOU with, कैपिटल में लिखेंगे, Northeast Center for Technology Application and Research. Northeast Center for Technology Application and Research. नेक्टार बोल रहे हैं, NACTAR, नेक्टार. Northeast Center for Technology Application and Research, नेक्टार. Under Department of Science and Technology, to deploy drones and unmanned aerial vehicles, UAVs. यूएवी और यूएफओ में क्या अंतर होता है? यूएफओ क्या आ रहे हैं पता नहीं है. एफ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड या अननोन, देख लेना जरा उसको. ठीक है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यूएफओ. ठीक है, जैसे आपने कभी वो कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन की तरह
भाई मुझे मेरे पास आ जाए, वो मेरे भी चश्मे की पावर है, वो भी हटा दें। हाँ? वो अचानक से एक दिन सवेरे उठा, बोला अरे मुझे तो इसको लगाने से धुंधला दिख रहा है। मैंने भाई वाह। अरे बच्चों के लिए बनती थी। अच्छा आजकल के बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते ऐसे मूवीज में। जो बच्चे हैं वो भी समझ गए कि अरे ये सब बकवास है ये। असली आनंद तो थानोस के संग है, तो थानोस को देख रहे हैं। देखिए, SNT to deploy drones and UAVs, unmanned aerial vehicles, in difficult terrain to map the roads under ramps. To map the roads under ramps. To map the roads under ramps. लिखिए सेंट्रल रोड फंड। सेंट्रल रोड फंड। सेंट्रल रोड फंड, also known as Central Road and Infrastructure Fund, also known as Central Road and Infrastructure Fund. It was established under CRF Act 2000. It was established under CRF Act 2000. Established under CRF Act 2000. Full stop. The fund comprises of a cess. The fund comprises of a cess. What is the meaning of cess? Tax upon? What is the difference between cess and surcharge? सरचार्ज लगाया जाता है। हाँ, तो आप टैक्स अपॉन टैक्स बोलने के बजाय लगा सकते हैं कि एक्स्ट्रा लेवी विद अ स्पेसिफिक एंड यूज। एक्स्ट्रा लेवी विद अ स्पेसिफिक एंड यूज, या स्पेसिफिक की भी जगह पे कर सकते हैं एक्स्ट्रा लेवी विद एंड यूज रेस्ट्रिक्शन। एक्स्ट्रा लेवी टैक्स अपॉन टैक्स से तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया ना, तो मैंने अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए पूछ लिया आपसे अगला सवाल, क्योंकि मुझे तो उतनी जानकारी नहीं है। जिस समय आपका गली मोहल्ले का बच्चा आपके पास आएगा कंफ्यूजन अपना ले करके, आपका जिम्मेदारी आप उसका कंफ्यूजन दूर करें, ना कि उसे और कंफ्यूज करके भेज दें। वो कहेगा मेरा तो सॉफ्टवेयर में जो कमी थी वो भैया ने और ज्यादा बिगाड़ दी। ऐसा नहीं, अन्याय नहीं करना किसी के साथ। लिखिए, the fund comprises of a cess imposed along with excise duty, imposed along with excise duty on petrol and diesel, on petrol and diesel. अभी इतना महंगा लगता है, 200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का, जितने का भी डलवा लो टंकी भरी नहीं रही है, बुरी हालत है, सड़कें बन रही है उस पैसे से। लिखिए, CRIF is lying with the Ministry of Finance। इसको थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, जब भी मंत्रालय से संबंधित क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में अलर्ट हो जाओ, क्योंकि जो आपको लग रहा है वो नहीं है, ये नियम है यूपीएससी प्रीलिम्स का। जो मिनिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा लग रही है वही नहीं है उसका आंसर, तभी तो सवाल पूछा गया है। इतना आसान होता तो पूछते ही क्यों। CRIF is lying with Ministry of Finance. Earlier it was under Ministry of Road Transport. Earlier it was under Ministry of Road Transport and Highways North. लिखिए, after an amendment in 2018, after an amendment in 2018, CRIF money can be used. CRIF money can be used even for railways, even for railways and social infrastructure. CRIF money can be used even for railways and social infrastructure like medical colleges, etc. Like medical colleges, etc. जब तक सर नहीं आते एक टॉपिक बस और कर लीजिए, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा।
NSIDCL और BRO हम लोग कल कर लेंगे, और कल आई विल टीच यू अबाउट रेलवेज ऑल्सो। रेलवेज और एयरवेज हम कल ही निपटा देंगे, बहुत ज्यादा नहीं। फास्टैग, हम सब ने फास्टैग देखा हुआ है। फास्टैग एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये देखो, ये रहा। ऐसा फास्टैग लिखा रहता है। गाड़ी देखो, ये गाड़ी उधर से आ रही है और ये इधर से जा रही है, दोनों सिग्नल भेज रही है, ठीक है। देखिए, फास्टैग इज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फास्टैग इज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन chip which facilitates hassle-free automatic deduction of toll without having to stop at toll plaza। ये तो कागजों में बातें लिखी जाती हैं बस। without having to stop at toll plaza for carrying out the cash transaction, अरे भाई, कैश ट्रांजैक्शन के लिए नहीं रुकना पड़ता तो वैसे रुकना पड़ता है, वो पकड़ ही नहीं रहा है मशीन आपकी, ऐसा उसका एंगल पता नहीं क्या करता है। सी RFID इज दिस, ये RFID ऐसा होता है। जैसे ये पर्स है, RFID का क्या है मतलब, ये तो उससे प्रूव्ड है। जैसे आप किसी मॉल में गए या आप किसी भी ऐसे बहुत हाई प्रोफाइल सेटिंग में गए जहां पर टेक्नोलॉजी के या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत ज्यादा है, तो जैसे आप किसी मॉल में घूम रहे हैं और आपका जो पर्स है वो किसी एक व्यक्ति के पास उसके लैपटॉप की रेंज में आ रहा है, जिसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो इसमें जो कार्ड्स रखे हैं उसमें सेंधमारी कर सकता है। समझ रहे हैं? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है, मतलब अच्छी है, देख लो सीमलेस हो रहा है, पैसा नहीं देना पड़ रहा, सब कुछ है, बट इट इज रिस्की ऑल्सो। RFID प्रूफ तो अब विदेशों में तो जो चल रहा है, और अब इंडिया में भी धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे उतना नहीं है, वो लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, इसकी वजह से अभी भी वो इंदिरा बाजार वाले, जो इंदिरा मार्केट वाले पर्स बिक रहे हैं। अदरवाइज तो RFID प्रूफ ही लेने चाहिए। RFID इज अ रिस्की अफेयर। देखिए, और उसमें क्या होता है, देखो दूर से गाड़ी आती है टोल प्लाजा में, और वो मशीन तो ऊपर लगी है, टोल नाके की जो मशीन, वो जो ऊपर है, जो स्कैनर है, तो काफी ऊपर उसके रूफ पे लगा रहता है भाई। जब वो नहीं पकड़ पाता तब उनके पास एक मैनुअल मशीन होती है, वो जैसा वो कोविड का टेम्परेचर चेक करते थे, उस तरीके का मशीन ला करके सामने गाड़ी का टेम्परेचर ले लेते हैं और पैसा कट जाता है, तो अलग बात है, पर वो ऊपर मशीन लगी रहती है CCTV कैमरा की तरह। देखिए, the information stored in the chip can be read from several feet away. The information stored in the chip can be read from several feet away. इस पर लिखा हुआ RFID blocked, कोई हरकतबाजी नहीं कर सकता। FASTag was introduced on 1st April 2016 and it is mandatory on all national highways across India. 1st April 2016, and it is mandatory on all national highways in India since 1st December 2017. अब तो दुगना कैश देना पड़ता है on all national highways across India since 1st December 2017. या तो आपके पास हो फास्टैग, बहुत अच्छा है, वरना जब टोल प्लाजा आने लगता है तो फास्टैग वाले स्टॉल लगा करके बेच रहे हैं, तो वो एक्टिवेट कर देंगे उसको, आप उनसे खरीद लो, एक वो तरीका है। और वरना यह है कि जितना टोल है उसका डबल टोल दो कैश में, और उनकी बातें अलग सुनो।
वो बोलेंगे भी आपको, और पहले तो बुरी नजर से ही देख लेंगे आपको, तो आपका उसी से मूड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, क्या बड़ी बिल्डिंग हैदराबाद में बनाई हुई है एनपीसीआई वालों ने, ऐसा लगता है जैसे सारी दिवाली यही मन रही है, इतनी लाइटें जलती हैं उसमें। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IHMCL, इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IHMCL, a daughter company of NHAI, are implementing this program. To encourage the use of FASTag, NHAI offers a cashback of, यहाँ पे कान खड़े हो जाते हैं भारतीयों के कि जहाँ कैशबैक की बात आई, वाउचर मिल रहा है क्या, टोकन मिल रहा है क्या, कैशबैक मिल रहा है क्या, तब बताओ तो करें, वरना क्या फायदा है ना। कितना आ रहा है, 2 रुपए आ रहे हैं, अरे बहुत है। NHAI offers a cashback of 50% of total monthly transactions. 5% है, सॉरी 5% है, 50 तो बहुत ज्यादा हो गया, NHAI बर्बाद हो जाएगा। 5% of total monthly transactions। देखिए, फास्टैग इज अवेलेबल इन 7 different colors। फास्टैग इज अवेलेबल इन 7 different colors, denoting a distinguished category for each color, केवल कलर्स लिखेंगे, कलर्स के साथ गाड़ियां भी लिखेंगे, वो पूछा कभी नहीं जाएगा, बता दो। मेरा तो सामने लिखा है, मुझे कोई एतराज नहीं है। रेफरेंडम करा दें, बताओ, यूक्रेन को बोलने दिया जाए या ना बोलने दिया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जल्दी बताओ भैया, ऐसे डिसीजन लेंगे क्या है? हाँ, तुरंत बोला कीजिए। जिले में आग लगी होगी तो ऐसे सोचेंगे क्या कि अरे भाई अब ठीक है कल बताते हैं, तब तक तो बुझ ही जाएगी आग, हम डिसीजन क्यों लें। देखिए, वायलेट कलर, सबसे पहला वायलेट, डैश ला के लिखेंगे, कार ऑब्लिक जीप ऑब्लिक वैन, कार ऑब्लिक जीप, याद तो रहेगा नहीं। अभी शोला फॉरेस्ट पूछ लो किस कैटेगरी में आता है तो वो नहीं बता पाएंगे, कार वैन और जीप याद करेंगे, कलर उसका, कार ऑब्लिक जीप ऑब्लिक वैन ऑब्लिक लाइट मिनी कमर्शियल व्हीकल्स, नेक्स्ट ऑरेंज, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स with 2 axle, एक्सेल मतलब AXL ही है, एक्सेल वो मतलब देना टी शर्ट वाला। नेक्स्ट लगी है येलो, बस एंड ट्रक्स विद 3 axle। 3 axle बसेस देखी हैं, स्कैनिया कंपनी की बसेस आती हैं 3 axle, चंडीगढ़ यूटी ट्रांसपोर्ट, पंजाब ट्रांसपोर्ट, राजस्थान रोडवेज सब ने ली हुई हैं, स्कैनिया कहलाती हैं। उसमें पीछे वॉल्वो ने अभी, स्कैनिया एक कंपनी है, जैसे वॉल्वो एक कंपनी है ना, ऐसे स्कैनिया एक कंपनी है, उनकी बसेस आती हैं। वॉल्वो बसेस वो भी होती हैं AC बसेस, उसमें आगे तो जो ड्राइवर के तरफ एक्सेल है वो है, फिर पीछे 1 एक्सेल और एक, तो 3 एक्सेल का हो जाती है। उसका सस्पेंशन बहुत बढ़िया होता है बसेस का। लिखिए येलो, नहीं येलो आप लिख लिया ना, देन ग्रीन, बस एंड ट्रक विद 2 axles, बस एंड ट्रक विद 2 axle। जैसे आर्मी का ट्रक आता है 3 टन, वो 2 axle का होता है। 3 टन जानते हैं ना, 3 टन बोलते हैं आर्मी के ट्रक को, है?
2.5 टन, तो उसमें जो वो रहता है एक आगे और 2 एक्सल का। पर आर्मी का तो ये फास्टैग वगैरह का तो सिस्टम है ही नहीं, उनका तो अलग से रहता है। आर्मी का तो वो नाका खोल दिया जाता है जिस समय उनका मूवमेंट होता है। देखिए पिंक, ट्रैक्टर विद और विदाउट ट्रेलर, विद और विदाउट ट्रेलर। पब्लिक ट्रक, ब्रैकेट में लगे 4, 5, 6 एक्सल्स, 4, 5, 6 एक्सल्स। ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगी है कर्तव्य पथ के पीछे, जो इंडिया गेट के पीछे जो कैनोपी में मूर्ति खड़ी की गई है, ये मोनोलिथ है। पता है आपको? ये एक ही पत्थर में से इसको आकार दिया गया है। तो वो तेलंगाना, हैदराबाद से वो पत्थर मंगाया गया था, तेलंगाना से आया था। तो उसके लिए अलग से, क्योंकि कल्चर मिनिस्टर है कौन देश के? टूरिज्म मिनिस्टर। अरे इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम सिकंदराबाद इटसेल्फ, जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। ठीक है, तो उन्होंने वही का एरिया बताया था, वहां से वो पत्थर आया था। तो उसके लिए एक अलग से ट्रक का वो ट्रेलर बनाया गया था, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर था वो, उसको लाना, तो उसके लिए अलग से उसमें एक्सल लगा करके वो ट्रक बनाया गया था। रूट सर्वे हुआ था कि आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा, कहीं पता चले बीच में ही अटक गया तो फिर प्रॉब्लम है। और इतना ज्यादा हैवी था कि उसे फ्लाइट से लाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। ये मतलब फ्लाइट में आ जाएगा ये नहीं कि उसको उठा नहीं सकते, बात ये उसको अंदर कैसे किया जाएगा उसमें एरोप्लेन में, वो एक बड़ी चुनौती थी। लिखिए ब्लू, ट्रक विद 7 और अबव एक्सल्स, ब्लू कलर, 7 और अबव एक्सल्स। नेक्स्ट ब्लैक, अर्थ मूवर्स ऑब्लिक हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी, earth movers oblique heavy construction machinery. So that's all for today. So in tomorrow's class I'll teach you NHIDCL and BRO. Subsequently I'll start railways. Thank you so much.